بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ کی فیملی وزٹ ویزا پر سعودی عربیہ میں موجود ہے تو آپ ہمیشہ ایک انشورنس کرواتے ہیں، جسے ہم بھی ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ وہ انشورنس صرف اور صرف ویزا ایکسٹینشن کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے محمد اسحاق صاحب نے، جو کہ جدہ میں ہیں، اور انہوں نے ایکسپیرینس تو جدہ کے حوالے سے شیئر کیا، لیکن یہ والے جو رولز ہیں، جو طریقہ کار ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کسی بھی اگر شہر میں موجود ہے سعودی عربیہ میں، تو انشورنس سے آپ کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ ایمرجنسی ہی ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی ایمرجنسی ہو اور انشورنس والے آپ کی بات نہیں سنتے۔ انشورنس والوں کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ پکڑنے کا نہیں بلکہ ان کا گلا پکڑنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور یہ بتایا ہے اسحاق صاحب نے، اور انہوں نے پیمنٹ لے کے چھوڑی ہے انشورنس سے۔ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی، آپ کو تب ہی پوری بات سمجھ آئے گی، اسپیشلی وہ لوگ جن کی ڈیلیوریز ہونے والی ہیں، جن کے بیبی کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سب لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ ایمرجنسی کوئی بھی آپ کو کسی بھی وقت اللہ نہ کرے ہو سکتی ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ اسحاق صاحب نے اس پر تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ کام کیا ہے۔ 1 سے 1.5 مہینہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے، تو آپ کو یہ ویڈیو میں پورا ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا ہے۔ ٹوٹل میکسیمم 15 منٹ ہو جائے گا، 20 ہو جائے گا، مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ ویڈیو کہاں پہ ختم ہوگی، لیکن ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ میں اس میں سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے کوئی چیزیں اس میں سے نکال دوں اور جو ضروری چیزیں ہیں صرف وہ ایڈ کروں، لیکن کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ اس میں سے میں نکال سکوں۔ تو لفظ بلفظ جس طرح انہوں نے بتایا وہ آپ خود سنیے گا۔ کافی لوگ ڈرتے ہیں، یار ہمیں عربی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، ہم کیسے کریں گے، یہ کریں گے۔ انشورنس کا کوئی بھی مسئلہ ہو، CCHI والوں کو کال کریں، کمپلین درج کروائیں اور انتظار کریں، وہ لوگ خود آپ کو فون کریں گے۔ آپ کے پاس کمپلین نمبر آ جائے گا میسج میں، ٹھیک ہے، اور وہ جو نمبر آئے گا اس نمبر کو آپ یاد رکھیں، اور کمپلین نمبر جب بھی فون کریں آپ اردو میں بات کریں، ان سے مکمل تفصیلات ان کو بتائیں اور ان سے اس کی خبر لیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ انشورنس کی کوئی بھی مسئلہ ہو انشورنس کا، CCHI والوں سے رابطہ کریں۔ یہ ادارہ ہے ایک انشورنس والوں کے اوپر، یہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ کی انشورنس والے بات نہیں سن رہے تو آپ اس ادارے کے تھرو کمپلین کر سکتے ہیں، یہ ادارہ انوالو ہو کے اس کو آپ کا کام کروا کے دیتے ہیں۔ اچھا، کمپلین والوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کی کمپلین بند ہو رہی ہے کیونکہ انشورنس والوں نے آپ کے پیسے دے دیے۔ میں نے کہا نہیں، کمپلین بند نہیں کریں، ابھی تو میں نے بیبی کے پیسے لینے ہیں، اصل مسئلہ تو وہ ہے 27,000 ریال، 4,000 تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے کرنی ہے تو دوبارہ کمپلین کریں۔ وعلیکم السلام جی کبیر بھائی، میں آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے نا چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے آپ کو میں ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں اور بتاؤں گا، اور میں چاہتا ہوں یار، اصل میں پتہ کیا ہوا میرے ساتھ، میں اس کے لیے بہت بھاگا ہوں کبیر بھائی، یقین کریں۔ ایک تو مطلب 2 مہینے سے میری سیلری رکی ہوئی تھی، کام بالکل نہیں تھا، ہم لوگ گھر پہ بیٹھے تھے، تو میرا پلان نہیں تھا ان کو یہاں پہ ڈلیوری کا، بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ میری شادی بھی یہاں پہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے فائنل ایگزٹ پہ بھیجا تھا، میری ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے یہاں پہ، تو میں نے مطلب بہت بھاگ دوڑ کی، میں نے کہا کچھ ایسا مسئلہ ہو کہ یہ نکل جائیں۔ میں نے ٹکٹ بھی آگے پیچھے کروائی، وہ بھی میرے پاس ہے، تو نہیں ہو سکا، بس نصیب میں ایسا تھا کہ 7 منتھ میں جو ہے نا، یہ ایمرجنسی حالت میں ادھر گیا ادھر گیا، کارڈ بنوا انشورنس کے، ابیر میں جا کے وہ والا کارڈ بنوایا تھا جو کارڈ ہوتا ہے سلامتک والا، وہ بنوایا، اس میں ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ ہم نے آگے پیچھے سارا کرتے رہے۔ جب ڈیلیوری کا ہم نے سوچا یہی تھا کہ بھئی ابھی تو مطلب 7 منتھ سے پہلے یہ نکل جائیں گے، تو فلیٹیں بند ہو گئی تھی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے کوشش کی کہ کم سے کم جو ہے نا، میں جو جگہ ہو جہاں پہ ڈیلیوری ہو جائے، تو میری کوشش بھی یہی تھی کہ پہلے بھی ماشاءاللہ ایک بچی جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری سے ہے، تو یہی کوشش تھی کہ جو ہے نا یہ میرا ہو جائے مسئلہ۔ تو بھاگ دوڑ کی بہت بہت زیادہ، اس میں میں نے ایک انشورنس کارڈ بنوایا، آپ نے بھی سنا ہوگا، تکافل عربیہ، ٹھیک ہے، یہ کارڈ میں نے بنوایا تقریباً 250 ریال کا نا۔ اس میں کافی سارے مستشفے ہیں جس میں ڈسکاؤنٹ ہے، مطلب کم سے کم ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ آپ کا نارمل ڈیلیوری کا 4500 ریال ہے، 4500 ریال۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ میں نے کارڈ بنوایا۔ اس کے بعد میں جب چیک اپ کے لیے وہاں پہ گیا، میں نے کہا کیونکہ اب ڈیلیوری یہیں پہ ہوگی، تو میں اس ہاسپٹل میں گیا، تو اس ہاسپٹل کا نام ہے بن لادن، مستشفى بن لادن، یہ حی الحمرہ میں ہے، ٹھیک ہے۔
तो वहाँ पे मैं गया तो उन लोगों ने जब चेकअप के लिए उन लोगों ने पहले तो 150 रियाल फीस ली डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं समझ गया भाई ये तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मतलब फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो टेस्ट वगैरह हैं टोटल कितने इसकी जो होगी, स्कैनिंग वगैरह जो करते हैं, अल्ट्रासाउंड, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके जो है ना आपके 900 रियाल तक लगेंगे तकरीबन। तो मैं तो पीछे हट गया, मैंने कहा 900 रियाल ये होगा 4500 डिलीवरी का, मैं तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे। खैर जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया ना। फिर मैंने उसी हॉस्पिटल में बैठ के जो है ना कॉल की, जिद्दा नेशनल में मेरी जो पहली बच्ची हुई थी, मेरी बेटी है माशाल्लाह 2.5 साल की, वो यहीं पे पैदा हुई थी जिद्दा में, जिद्दा नेशनल हॉस्पिटल में, ये तरीक मकरूना पे है, ठीक है। तो उसमें मैंने उस वक्त जो रेट थे वो थे नॉर्मल डिलीवरी के 4500 रियाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो गई थी नॉर्मल, वो तो हालात भी अच्छे थे उस वक्त। तो ये लोग भी वीज़े पे थे, मेरी फैमिली भी वीज़े पे थी पक्के। तो इनकी इंश्योरेंस उस वक्त भी नहीं हो सकी थी, कुछ कंपनी में मुश्किल चल रही थी, वो नए नए सिस्टम निकला था कि इज्तिमाई इंश्योरेंस बनवाएं। उसके बाद ये हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी मैंने पता किया, यहाँ पे हम मुतमईन थे, यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, इंडियन हैं, तो पाकिस्तानी डॉक्टर भी थे, उनको चेकअप वगैरह करवाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी यहीं पे हो गई थी। तो अब मैं इस चक्कर में था कि मैंने तो भेजना है, उससे पहले मैंने कहीं पे भाग दौड़ नहीं की, कोई मालूमात कहीं से नहीं ली। तो आखिरी जब 6ठे महीने के बाद जब 7वां महीना शुरू हुआ तो मैंने कहा ये अब तो जाना मुश्किल हो गया इनका, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा सारा कुछ ना। तो मैंने इधर जा उधर जा, इससे पूछ उससे पूछ, मतलब महंगे भी हैं और सस्ते भी। कम से कम जो मुझे सस्ता लगा है ना जिद्दा में, वो है 3500 रियाल, अभी डिस्काउंट लगी हुई है जिद्दा नेशनल में, जिद्दा नेशनल हॉस्पिटल में। माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, डॉक्टर भी सारे अच्छे हैं, नर्सेज भी अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब बहुत हेल्प करते हैं। तो इखलाक भी उनका अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि मेरी बेगम की पैदाइश यहाँ की है, तो वो मतलब हम इन चीज़ों को पहले देखते हैं कि मतलब अच्छी हो, हॉस्पिटल भी अच्छा हो और हमारे मतलब पैसे भी हमारे इतने ज़्यादा ना लगें। तो खैर हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी में हमने चेकअप जब करवाया तो उन डॉक्टर जो थी वो पाकिस्तानी थी। तो जब मैंने सोचा कि अभी डिलीवरी तो यहाँ पे होनी है, तो मैंने मालूमात शुरू की, इधर गया उधर गया। मेरी कोशिश थी कबीर भाई, मेरी कोशिश थी कि ये मक्का में हो जाए, मक्का में इससे भी ज़्यादा सस्ते हॉस्पिटल हैं। मैंने सारी मालूमात की है, मक्का में तकरीबन 2500 ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो 2500 रियाल में डिलीवरी करते हैं ना, तो नॉर्मल डिलीवरी। सिजेरियन जो है वो 4000 से ऊपर है, मतलब 5000 हैं या 5500 6000 इस तरह से हैं। खैर मेरी कोशिश थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम नहीं जा सके वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, क्योंकि मेरी बेगम की पैदाइश यहीं पे थी, मक्के में ही वो पले बड़े हैं, तो इनकी दो तीन बहनें भी मक्के में रहती हैं। तो मैंने सोचा मक्के में करवा लेंगे। तो लॉकडाउन की वजह से हम बिल्कुल, मक्का तो वैसे भी आपको पता है बंद हो चुका था। तो फिर हमने इधर गए जिद्दा नेशनल में, हमने मालूमात की, उन्होंने कहा कि आपकी डिलीवरी हो जाएगी, अभी आपका जो है ना 7 मंथ का प्रेगनेंसी है, 7 मंथ की, और मुश्किल ये है कि आपके बेबी का पानी जो है ना वो कम हो रहा है, पेट में ना पानी लीक हो रहा है। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि मैं सीधी सी बात करूँगी, आपको तसल्ली नहीं दूंगी, तो आप डिलीवरी करवा लें, बच्चे को NICU में रखेंगे, ठीक है। उसके लिए ये होगा कि आप सबसे पहले जो है ना पैसों का अरेंज करें, जो भी आप कर सकते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जहाँ जहाँ से आप ले सकते हैं, आप पैसे लाजमी लेके आएँ। तो मैंने एक पूछा कि तकरीबन कितने हों, उन्होंने कहा 27, कम से कम 27,000 रियाल, इससे ज़्यादा 35 तक हो आपके पास। उन्होंने मुझसे कहा कि 30,000 या इससे ऊपर आप लेके आ जाएं जल्दी से। मैं तो परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। इधर मतलब सिम्टम्स भी कुछ ऐसे थे कि डिलीवरी बिल्कुल करीब हो चुकी थी। तो खैर मैंने कहा मेरी इंश्योरेंस है, ये तो अब 7 मंथ में एमरजेंसी हो रही है, तो आप पता करें। उन्होंने कहा कि आप इंश्योरेंस वाले ऑफिस में हमारे चले जाएं हॉस्पिटल में, वहाँ आपको बताएंगे। जब वहाँ गया तो कोरोना की वजह से इतना रश था, तकरीबन दो अबीर यहाँ पे बंद हो चुके थे जिद्दा में। तो जिद्दा नेशनल में अबीर के जो कस्टमर हैं, जो मरीज़ हैं, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। बहुत मुश्किल से मतलब मैं इंश्योरेंस वाले के पास गया, उन्होंने कहा भाई अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है हमारे पास, आप मालूमात भी लेना चाहते हो तो हम नहीं दे सकते। खैर हम घर वापस आ गए, हमने कहा कुछ दिन निकल जाएं। डॉक्टर ने भी यही कहा कि आप बस ज़्यादा से ज़्यादा इसको आराम करवाएं बेगम को, और आप ऐसे बस टाइम गुजार लें, बस 2 हफ्ते आप और गुजार लें। उसके बाद आप अगर आ भी जाएंगे तो 2-4 दिन NICU में रखेंगे तो आपका बिल ज़्यादा नहीं बनेगा।
لیکن پیسے آپ نے پہلے لے کے آنے ہیں. خیر ہم چلے گئے, ہم گھر آ گئے, ہم نے مشورہ کیا جو جہاں سے لینا دینا کچھ نظر آتا تھا کہ لے لیں, گاڑی بیچ دیں یا جو بھی ہم نے کرنا تھا, تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہو سکا نا. بالآخر یہ ہوا کہ دوسرے دن, ہم جس دن سے واپس آئے دوسرے دن اس کو بہت زیادہ لیکیج شروع ہو گئی, اور مطلب پہلے بھی ایک بچہ تھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دردیں شروع ہو گئیں. اب ہم پریشان. میں نے سوچا بھائی بس جو بھی کرتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایمبولینس کو فون کرتے ہیں, وہ جس ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ ڈیلیوری ہوگی, بعد میں دیکھی جائے گی. ابھی میرے پاس جو ہے نا پیسے نہیں ہیں, تو میں کیا کروں. 7 منتھ کی ڈیلیوری ہے, بات بھی کوئی نہیں سن رہا. کورونا کی وجہ سے تقریباً 2-3 ہاسپٹل 4 ہاسپٹل بند ہو چکے تھے نا جدہ میں, تو ہم بہت زیادہ پریشان تھے. خیر ہم نے ایمبولینس کو فون کیا, آدھے گھنٹے میں وہ لوگ آئے. تو وہ لوگ انہوں نے بلڈ پریشر چیک کیا آنے سے ہو, تو پوچھا کیا مسئلہ ہے کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کہاں لے کے جانا ہے. میں نے کہا بھائی میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ میں جدہ نیشنل میں ویسے چیک اپ کروا رہا ہوں ان کا, ابیر میں بھی میں نے کروایا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آپ جہاں بھی لے کے جائیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں لے کے جانا ہے. اب جی وہ ادھر ایک عزیزیہ میں ہے, ولادہ مستشفی ولادہ سرکاری ہاسپٹل ہے. پہلے وہ لوگ ایمبولینس میں بٹھایا, ہم ادھر ہمیں لے کے گئے. وہ ہمیں اترنے سے پہلے انہوں نے کہا بھی آپ بیٹھیں, ہم معلومات کر لیں کہ وہ لوگ آپ کو لیتے ہیں, جیسا آپ کا کیس ہے کنڈیشن ہے وہ کیا کہتے ہیں. خیر اب وہ لوگ پوچھ کے آئے, انہوں نے کال وغیرہ وائرلیس ماری, ان سے پوچھا معلومات کی. انہوں نے کہا بھائی ہم یہ کیس نہیں لیں گے, ٹھیک ہے نا, اجنبیوں کو نہیں لیں گے. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہمیں اور ہاسپٹل میں جانا پڑے گا. تو ہم دوسرے ہاسپٹل میں, اب وہ لے گئے ہمیں جدہ ایسٹ ہاسپٹل میں, جو سرکاری ہاسپٹل ہے, وزارت صحہ جو ان کا ادارہ ہے. تو وہاں پہ لے گئے اس ہاسپٹل میں, الحمدللہ ایمرجنسی میں ہمیں لے گئے. ایمرجنسی میں لے گئے, انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ, انہوں نے کہا بھی پہلے پیسے دو. میں نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں. خیر انہوں نے میں نے کہا انشورنس ہے, انہوں نے کہا بھائی آپ انشورنس کے آفس چلے جائیں, وہاں سے پتہ کر لیں, اگر انشورنس ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کا کیس لے لیتے ہیں. انشورنس والوں کے پاس گئے, انہوں نے انشورنس والوں, وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا جو انشورنس والوں, جو ان کا مطلب مدیر تھا انشورنس کا, تو مسئول تھا. تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اب یہاں سے کہیں نہ جانا. پہلی بات یہ 7 منتھ کی ڈیلیوری ہے, آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, آپ بس چپ کر کے تھوڑا وقت گزار لیں, انشاءاللہ ہم آپ کا کیس لے لیں گے جب ڈیلیوری قریب آئے گی. تو خیر انہوں نے انشورنس والوں کو بھی پیپر بنا کے سینڈ کر دیا, تکافل الراجی والوں کو, کہ بھئی ایسے ایسے ڈیلیوری ہے, کیس آیا ہوا ہے ہمارے پاس, تو آپ جو ہے نا اپروول دے دیں تاکہ ہم ڈیلیوری کروا رہے ہیں. تو کبیر بھائی ان لوگوں نے نا, تکافل الراجی والوں نے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے, فوراً پیپر 5 منٹ میں ریجیکٹ کر دیا. تو ہم لوگ جو ہے نا چیک اپ وغیرہ کروا کے, ان لوگوں نے کہا, جو ڈاکٹر تھی ایمرجنسی میں اس نے کہا بھئی لیکیج ہے, لیکن آپ جو ہے نا بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ بس جتنا وقت گھر گزار لیں, ٹھیک ہے, ابھی ڈیلیوری نہ کروائیں, آپ کے بہت پیسے لگ جائیں گے. خیر انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا نا. تو ہم واپس آ گئے. وہی رات ہم نے گزاری, بڑی مشکل سے رات گزاری. دوسرے دن صبح 9 بجے سے پہلے, 9 بجے تک, کیونکہ 9 بجے کرفیو ختم ہوتا تھا تو 9 بجے باہر نکلتے تھے, 9 سے 3 تک. تو 9 بجے سے پہلے دردیں شروع ہو گئی نا, تقریباً 7 بجے. تو میں نے 911 پہ کال کی, میں نے اجازت مانگی, ان لوگوں نے فوراً مجھے تصریح بنا کے دی. تو میں پھر اسی ہاسپٹل میں چلا گیا, جدہ ایسٹ میں. اب جب میں گیا تو وہی بات, بھئی آپ پیسے جمع کراؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پیسے جمع, میرے پاس 1000 ریال تھا. میں نے کہا ابھی میں یہ جمع کرواتا ہوں, میری انشورنس بھی ہے, آپ کیس تو لے لینا, بعد میں جو ہے نا دیکھ لیں گے جو بھی کرنا ہے اس کا. تو خیر ان لوگوں نے کیس نہیں لے رہے تھے, اس کو نکال دیا, میری بیگم کو بھیج دیا کہ بھئی آپ جا کے بیٹھو, باہر چلے جاؤ, بس ہم نہیں لے سکتے. خیر انہوں نے جب دیکھا کہ ڈیلیوری بالکل قریب ہے, تو کچھ ان کا ہوگا اپنا مسئلہ, کوئی ان کو حکومت کی طرف سے کچھ ہوتا ہے, مطلب ڈیلیوری باہر ہو جاتی تو ان کے لیے, ہاسپٹل والوں کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہوگا, پتہ نہیں. تو ان لوگوں نے نا مجھے ایک پیپر دیا, انہوں نے کہا بھئی آپ جاؤ, ٹھیک ہے, اس کے اوپر سائن کر دو. تو اب ڈیلیوری بالکل قریب ہے, ہم لے کے ان کو جا رہے ہیں, بیگم کو لے کے چلے گئے وہ لوگ. تو خیر ان کو لے کے چلے گئے. میں انشورنس والوں کے پاس بھاگتا رہا, ادھر جا ادھر جا, مدیر کے پاس جا کہ یہ سائن کر کے دے دیں. تو مدیر نے کہا بھی نہیں میں سائن نہیں کروں گا, آپ پیسے جمع کراؤ, ہم نہیں لیں گے کیس. خیر وہ جو جیسے بھی تھا ایمرجنسی میں, وہ تو چلی گئی تھی نا بیگم, اس کو تو لے کے چلے گئے تھے. پھر ایسے ہوا کہ
मुझे अब मैंने इनको जमा करवाया सुबह तकरीबन 9 बजे। इन लोगों ने हम ले लिया हमें, हम तकरीबन 8 बजे वहाँ पहुँच गए थे। 1 घंटा उन्होंने वेटिंग रूम में बिठाया। जो भी तकलीफ हुई बेगम को वो तो बहुत मुश्किल वक्त था, बस अल्हम्दुलिल्लाह जब सोचता हूँ तो मतलब बहुत अजीब फीलिंग होती है। तो खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी हो गई। इन्होंने मुझे नहीं बताया, इन्होंने कहा भाई अगर बता देंगे तो ये मुतमईन हो जाएगा। हम इन्होंने मुझे कहा भाई पैसे लेके आओ, ठीक है पैसे लेके आओ। मैंने कभी पैसे हैं नहीं, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं वो बाहर बैठ गया ना, उस हॉस्पिटल के बाहर जाके बैठ गया। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मैं गया अंदर, भाई मेरी बेगम है, मुझे बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो परेशान था बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी डिलीवरी हो गई है, ठीक है, आपका बेबी भी ठीक है, NICU में, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बेगम भी ठीक है, और आप घर जा सकते हैं। अभी हम मिलने नहीं देंगे क्योंकि कोरोना के मरीज हैं ऊपर, तो ऊपर किसी को नहीं जाने दे रहे थे ना बिल्डिंग में। तो खैर मैं अपनी बच्ची को लेके घर आ गया। फिर हम लोग ऐसे मतलब 2 दिन गुजरे। फिर उसको डिस्चार्ज करने के वक्त आया तो उन्होंने कहा भी पैसे दो। मैंने इंश्योरेंस दिखाई, अच्छा CCHI वालों को उन्होंने कहा आप कॉल करो। मैंने कहा इंश्योरेंस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने CCHI वालों के थ्रू कॉल की, CCHI वालों का नंबर उनसे लिया 99001177। CCHI वालों को मैंने कॉल की, मैंने कंप्लेन की कि राजी तकाफुल जो है ना, तकाफुल राजी की मेरी इंश्योरेंस है, विजिट वीज़े पे है, और ये मसला है, मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ कि ये इंश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे। एमरजेंसी में डिलीवरी हुई है तो अब मेरा डिस्चार्ज का वक्त है तो वो लोग पैसे दें, 4,500 रियाल बनता है, उनको चाहिए कि वो दें। खैर उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, और मेरे पास नंबर भी आ गया था कंप्लेन का, तो मैंने कंप्लेन ऑनलाइन उनकी कॉल के थ्रू ना कर दी थी। अच्छा जनाब, दूसरे दिन रिजेक्ट हो गई कंप्लेन, कोई रीज़न नहीं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई हम जो है ना आपकी पैसे नहीं दे सकते। मैंने कहा कैसे नहीं देंगे, ये तो नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी है, नॉर्मल होती तो मैं 4,000 में कहीं से भी करवा लेता। इमरजेंसी केस है, बेबी अभी NICU, मैंने मेंशन किया था ना उसमें, बेबी NICU में और बेगम डिस्चार्ज होने वाली है, तो मुझे पैसे मेरे पास नहीं है, आप इंश्योरेंस है आप दो। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने दोबारा कॉल की, फिर मैंने इनको कॉल की CCHI वालों को, मैंने कहा रीज़न बताएं क्यों कैंसिल की है। उन्होंने कहा रीज़न ये है कि आपकी ताउनिया की भी इंश्योरेंस है और आपकी तकाफुल राजी की भी इंश्योरेंस है। तकाफुल राजी वालों ने इसलिए रिजेक्ट किया, वो कहते हैं आप ताउनिया वालों को बोलें, वो लोग आपकी पहले आपकी वो इंश्योरेंस हुई है, ये बाद में हुई है, जब वो लोग दे देंगे तो हम भी कुछ परसेंटेज देंगे। खैर इससे मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई। फिर मैंने ताउनिया वालों को की, ताउनिया वालों ने भी ठीक है कंप्लेन हो गई, उन्होंने कहा ठीक है आपका कंप्लेन नंबर ये है और आप पता करते रहना फ़ोन करके। फिर जनाब ताउनिया वालों ने भी रिजेक्ट कर दी, ताउनिया वालों ने कोई रीज़न नहीं बताई। फिर मैंने कॉल की, फिर ईद की छुट्टियां आ गई दरमियान में, फिर ईद की छुट्टियां आ गई। उन लोगों ने कहा भाई अभी हमारे पास मतलब कॉल की इतना ज़्यादा मौजफ़ नहीं है, हम आपका मसला नहीं, अभी ईद की छुट्टी, ईद के बाद आप कॉल करना। ईद के बाद मैंने कॉल की, मैंने कहा ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, जो मेरे साथ हुआ है, इंश्योरेंस तो मैं लूँगा, मैं इनके ऊपर केस करूँगा। इंश्योरेंस किस लिए होती है, ठीक है। इंश्योरेंस का फिर मैंने वो टर्म्स एंड कंडीशन में देखा कि बेबी के लिए कितने पैसे होते हैं, डिलीवरी के लिए कितना होता है। इंश्योरेंस में जो है ना वो 4500 रियाल डिलीवरी का देते हैं, और 1,00,000 रियाल तक अगर बेबी का कोई मसला हो तो वो बेबी का भी देते हैं। खैर मैं कंप्लेन करता रहा ना, जो मुझसे हुआ मैंने कॉल की फौरन CCHI वालों के थ्रू। ये इदारा है एक इंश्योरेंस वालों के ऊपर, ये इनको कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी इंश्योरेंस वाले बात नहीं सुन रहे तो आप इस इदारे के थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं। ये इदारा इन्वॉल्व होके उसको आपका काम करवा के देता है, ठीक है, जो राइट्स होते हैं आपको। खैर मैंने कंप्लेन की, अल्लाह का करते कराते ऐसे हुआ कि 5 कंप्लेनें की मैंने कंप्लेन। फिर उन लोगों ने मुझसे वीज़े की कॉपी मांगी, मतलब फ़ोन आने लगे ना ताउनिया वालों के, ये भी दें वो भी दें, जैसे तंग करते हैं, ये भी पेपर दें वो पेपर दें। अब हॉस्पिटल वालों ने कहा भाई आप उनको ये कहें कि आप उनसे रब्ता करें, वो लोग आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे। खैर मैंने हॉस्पिटल वालों को कहा मुझे आप डॉक्यूमेंट्स दें, मैं उनको सेंड करता हूँ, ठीक है, फिर उसका ताकि जल्दी जवाब मुझे मिले। खैर उन लोगों ने मुझे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उन लोगों ने मुझे देते रहे ना, तफसीली फतूरा और ये चीज़ें सारी कि भाई कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ। उन लोगों ने सारा लिखा था, इमरजेंसी डिलीवरी हुई है तो ऐसे ऐसे सारा, बेबी NICU में है और ये इतना खर्चा हो रहा है इनका। तो उन लोगों ने, ताउनिया वालों ने ना 1 महीने के बाद
1 महीने के बाद उन्होंने अप्रूवल दे दी इसकी, मेरी बेगम की ना, 4,000 रियाल, 4,000 या 4500 रियाल। मुझे दिखाया भी नहीं फतूरा। तो मुझे इंश्योरेंस वालों का इनका फ़ोन आया कि भाई आपका जो है ना वो ताउनिया वालों ने पैसे दे दिए हैं, अभी आपकी बेगम के दिए हैं, लेकिन अभी आपके बेबी के पैसे नहीं दिए। हाँ, बेबी को 13 दिन रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया। उसका बना था 27,700 रियाल और डिलीवरी का था कोई 4,500 रियाल। खैर मैंने कहा अच्छा, कंप्लेन वालों ने मुझे फ़ोन किया कि आपकी कंप्लेन बंद हो रही है क्योंकि इंश्योरेंस वालों ने आपके पैसे दे दिए। मैंने कहा नहीं, कंप्लेन बंद नहीं करें, अभी तो मैंने बेबी के पैसे लेने हैं। असल मसला तो वो है 27,000 रियाल, 4,000 तो मैं भी दे सकता हूँ। खैर उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने करनी है तो दोबारा कंप्लेन करें। फिर मैंने इनसे हॉस्पिटल वालों से बात की। वो डॉक्टर बहुत अच्छा था जिसने काफ़ी कोऑपरेट किया है मुझसे, सऊदी था, अभी भी दुआएं निकलती हैं उसके लिए मेरी। खैर मैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, आपकी अगर एक उन लोगों ने कर दी है तो दूसरा भी इंशाल्लाह फौरन कर देंगे, ये असूल होता है। नहीं तो आपकी वो डिलीवरी के चार्जेस भी नहीं देते, अगर वो नहीं इंश्योरेंस ना चलती तो वो भी ना देते। खैर मैंने फिर कंप्लेन की, फिर बात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन उसकी अप्रूवल आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने 1 रुपया, अच्छा जो मैंने 1,000 रियाल दिया हुआ था वो मैंने वापस लिए जाके। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपका मसला हो गया है, ठीक है ना, आपने हुकूमत को कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स खाली पेपर के ऊपर स्टैंप अंगूठा भी लिया था और इकामा नंबर भी लिखा था, उसकी कॉपी भी ली थी और फ़ोन नंबर और नाम सारा मुझसे ले लिया था ना इन्फॉर्मेशन। उसमें ये भी लिखा था कि भाई इसने डिलीवरी करवाई है और इसके सारे पैसे इसने देने हैं। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, डिस्चार्ज जो करना था, ठीक है, उन लोगों ने। तो मैं लेके इनको अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गया। अब बेबी भी ठीक है, अब सब नॉर्मल कंडीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो काम भी खुल गए हैं, तो अब काम पे जा रहे हैं। ये सिचुएशन है ना। तो असल में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे यही है कि भाई इमरजेंसी का केस ये लोग करते हैं, ठीक है, उसके अलावा नहीं करते। उसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी का है तो सबसे बेहतर यही है कि आप इधर जिद्दा नेशनल में, अगर जिद्दा में है तो जिद्दा नेशनल में सबसे अभी ऑफर चल रही है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल है। और बाकियों के हॉस्पिटलों के भी मैं रेट बता सकता हूँ आपको। मसला ये है कबीर भाई कि मैं अपॉइंटमेंट देख रहा हूँ आवाल मदनिया की ना जिद्दा में, तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही बिल्कुल। जिद्दा में नहीं मिल रही, मक्का में मिल रही थी जोरशी मॉल में। तो मैंने मक्का की ली और मैं आज जो है ना निकल गया मक्का। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने पूरे किए, जो जो पेपर हॉस्पिटल का ले, और ये सारी कॉपियाँ वगैरह करवा के, नमूज़ जो होता है इसका वाक़या मिलाद का, वो मैंने फिल किया। सारा कुछ करने के बाद मैं वहाँ पे चला गया तो उन लोगों ने मुझे आज रिजेक्ट कर दिया। मुईद भी ली थी मैंने, तो उन लोगों ने कहा कि आपकी जिद्दा की पैदाइश है बेबी की, तो आप जिद्दा से बनवाएं। मैंने कहा जिद्दा में तो ऑनलाइन है नहीं, ठीक है। उन लोगों ने कहा भाई हमारा मसला नहीं है, आप जा सकते हैं। खैर मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। ये आज का अभी का वाक़या है। जिद्दा में अब अपॉइंटमेंट देख रहा हूँ मैं, तकरीबन 24 घंटे मेरे हाथ में जवाल है, मैं चला रहा हूँ, देख रहा हूँ, नहीं आ रहा। जैसे आएगा अल्हम्दुलिल्लाह फिर चलो कर लेंगे। तो अभी वीज़ा भी 31 जून को ख़त्म हो रहा है इनका। 6 महीने पूरे हो गए हैं, 31 जून को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। अब आगे पता नहीं एक्सटेंड होता है या नहीं होता। ये भी आपसे बस इतनी मालूमात मैंने लेनी है कि आगे एक्सटेंड होगा या नहीं होगा वीज़ा। और किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फतूरे वगैरह सारे, ये अब मेरे पास हैं, मैं ले आया हूँ। डिलीवरी के कितने थे और बेबी के कितने थे, क्या क्या था, 33 वीक्स की डिलीवरी थी, ये सारा मेरे पास मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं। आप इसमें से जो पॉइंट है ना वो नोट कर लीजिएगा और मुझे आप बता दीजिएगा। आप ये पॉइंट आप मुझे बता दें, बस पॉइंट बना के। आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वॉइस को वीडियो में कुछ करें। अगर हाँ प्रूफ के तौर पे अगर आपने करना है तो आप मुझे पॉइंट बता दीजिएगा, मैं 1 मिनट में तफसील से जो भी पॉइंट वाइज बात होगी मैं कर लूँगा। उसके बाद आप अपनी वीडियो बना के डाल दीजिएगा। और अगर किसी किस्म की मतलब वीडियो में अगर रेफरेंस देना चाहें तो किसी किस्म की कोई मालूमात लेनी हो, मैं आपके थ्रू मैं दे दूंगा आपको, ताकि आप दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए। बहुत टाइम जाए कि हाँ, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर अल्लाह ना करे ये डिलीवरी सिजेरियन होती, ऑपरेशन होता, तो इन लोगों ने नहीं करना था, या अल्लाह ना करे बेबी की डेथ हो जाती, क्योंकि वो लोग नहीं लेते। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, इसीलिए इन लोगों ने केस ले लिया था। ये भी मैं आपको बता दूं। ये ना हो कि ये हमारी वीडियो कोई देख के कोई ऐसे समझे कि भाई जब टाइम आएगा तो फिर देख लेंगे, नहीं।
किसी की नॉर्मल होती है, किसी की नहीं होती। अब जिसकी नहीं होगी उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनको क्या परवाह है, उनको तो कुछ नहीं है, उन्होंने वेटिंग रूम में बिठा देना है। तो बेहतर ये है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसके लिए भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये है कि आप बीवी से काम करवाते रहें, यानी हल्का फुल्का काम भी करती रहे, चलती रहे ना, पैदल वॉक जरूर करे और खाती पीती रहे बस। कबीर भाई, तकरीबन आपकी वीडियो देख के और आपकी जो है ना इंफॉर्मेशन के ज़रिए से मुझे जितना भी मैं हो सका है, मुझसे मैंने बहुत इस्तेफादा किया आपकी वीडियो से। तो आपके लिए दुआएं भी निकलती हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे है, मतलब कोई भी अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। जितनी मुझ तक मुझे पता है मैं ज़रूर आपकी मतलब वो करूँगा, ताकि आप वीडियो के ज़रिए से ना लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बेचारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन काफ़ी हैं जो इन चीज़ों से नहीं गुजरे, जिनको कुछ पता नहीं है। ये बहुत मसाइल होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप करते रहें काम, ठीक है, इंफॉर्मेशन दें, लोगों को मालूमात दें, ताकि लोग परेशानी में, पहले भी बहुत परेशानी में है, तो आगे क्या होगा पता नहीं। खैर, जज़ाकल्लाह खैर, आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया है, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप काम करते रहें अपना, और जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक सवाल आपसे कि जो आपके पास इंश्योरेंस थी, एक ताउनिया की थी और एक तकाफुल अल राजी की। ताउनिया की क्या वजह थी कि आपकी दोनों इंश्योरेंस वैलिड थी, पहली चीज़। और दूसरी ये कि ये आपकी वही इंश्योरेंस थी जो आपने वीज़ा एक्सटेंड के लिए करवाई हुई थी, जो आप वीज़ा एक्सटेंड करते हैं और 3 महीने के लिए इंश्योरेंस करते हैं, या इसके अलावा कोई और इंश्योरेंस थी? एक तो आपने हॉस्पिटल से कार्ड वगैरह बनाए अपने, जिस तरह उबीर से या दूसरे हॉस्पिटल का आपने बताया 300 350 रियाल का जो कार्ड आपने बनाया, उसके अलावा ये वाली जो इंश्योरेंस थी, क्या वही वीज़ा एक्सटेंशन वाली थी या इसके अलावा आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई थी? फिर रही बात इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस जो है वो जो ताउनिया वाली इंश्योरेंस थी, ये 2 साल की है और ये पाकिस्तान में होती है, ठीक है, लेकिन ये एक्सटेंशन के लिए ये इंश्योरेंस काम नहीं करती, ठीक है। हादसाती तौर पे ये इंश्योरेंस काम करती है जब वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ, ठीक है, उसके बाद 3 मंथ के बाद आपको पता है कि इंश्योरेंस करनी पड़ती है। तो वो मैंने तकाफुल राजी की थी। अच्छा, उसमें ये हुआ था कि मैंने कहा था भाई एक साल की करता हूँ एक्सटेंशन के वक्त, फिर दोबारा बार बार इंश्योरेंस करना मुझे नहीं ठीक लगा, मैंने कहा बस 1 साल की कर लेता हूँ, ठीक है, 1 साल की दोनों की मैंने की। अच्छा, इसमें भी मेरे साथ एक और काम हुआ ना, तकाफुल राजी की मैंने पे कर दिए, पैसे कट गए, सारा कुछ हो गया, तो अब इंश्योरेंस का मैसेज नहीं आ रहा। बेटी का आ गया था, बेगम का नहीं आ रहा था, ठीक है, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने लास्ट डे की थी, दूसरे दिन मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, अगर एक्सटेंशन ना होती तो मैंने एक ही रात में ना 2 दफ़ा मैंने पे किए, 2 दफ़ा मैंने पैसे भर दिए तकाफुल राजी वालों को, तो दूसरी दफ़ा भी रिप्लाई नहीं आया। दूसरे दिन जब एक्सपायर हो रहा था, 2 दिन और भी होते हैं एक्सपायर होने के बाद, ठीक है, उस दिन मैं मकतब में चला गया, मैंने कहा यार जैसे भी करो, जितने पैसे लो, मुझे कोई भी इंश्योरेंस करके दो ताकि मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। खैर, मैंने उनको पैसे, उन्होंने कहा 100 रियाल लेंगे, 3 महीने की एक्सटेंड कर देंगे, विजिट अपना इंश्योरेंस कर देंगे 3 महीने की, आप उसके बाद एक्सटेंड कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको 100 रियाल दिया जल्दी से। तो उन लोगों ने मुझे जैसे ही पैसे लिए, मेरे पास मैसेज आया इंश्योरेंस का, तो मेरे पास तीनों मैसेज आ गए ना। एक वो वाला मैसेज आया जो मैंने 100 रियाल दे के 3 मंथ की बनवाई थी, वो तो खैर एक्सपायर हो चुकी थी, अब नहीं काम हो, क्योंकि ये 3 महीने फिर पाकिस्तान लगा के आए थे, वो उस वक्त एक्सटेंड हो गया था उसके ऊपर। उसके बाद दोनों मैसेज आ गए ना, फिर मेरी इस वक्त जो मौजूदा जो इंश्योरेंस थी वो 3 थी। इस वजह से मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मेरी 3 इंश्योरेंस हैं और वो लोग मुझे इस तरह जलील कर रहे हैं ना, और है भी इमरजेंसी केस। तो मैंने उनको कहा ठीक है, आप मैंने फिर उनसे रब्ता नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं है, 300 रियाल की कोई बात नहीं है। मेरे गालिबन वो 150 रियाल की हुई थी 2 दफ़ा। तो तीनों मैसेज मेरे पास आ गए। मेरे पास वैलिड जो इंश्योरेंस थी वो 3 थी, 2 तकाफुल राजी की 2 थी, एक जो है ना वो ताउनिया वालों की थी। तो तीनों का जो है ना, मैंने क्योंकि ये 1 साल की थी, अब 2021 तक मेरे पास सारे इंश्योरेंस हैं, अभी भी हैं। वो मैं अगर आप कहें तो मैं आपको CCHI की जो है ना वो तस्वीर भी भेजता हूँ, जिसके अंदर मेरी तीनों इंश्योरेंस जो है ना वो शो हो रही हैं इस वक्त भी, ठीक है। तो ये मसला था ना इंश्योरेंस का। अच्छा, इसमें एक और बात भी मैं भूल गया हूँ,
CCHI والے جو ہے نا, مجلس زمان صحا والے, یہ عربی میں بھی مطلب ہے کمپلین کر سکتے ہیں, انگلش میں بھی اور اردو میں بھی. اور اردو میں جو میں نے کی تھی نا, مطلب بہت اچھا مجھے رسپانس ملا ہے اور کافی میری بات سنی گئی ہے. تو پہلے تو میں تعاونی والوں کو کرتا رہا, اور تکافل اور راجی والوں کو, وہ عربی تھے نا, وہ سمجھ بھی نہیں آتی, مجھے بھی میری ٹوٹی پھوٹی عربی ہے, میں ان کو سمجھا نہیں پایا. ویسے بھی وہ فون اٹھا کے رکھ دیتے تھے, آدھا گھنٹہ میں پکڑ کے بیٹھا ہوں, ایوہ حبیبی ایوہ حبیبی, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ نہیں. تکافل اور راجی کی بات کر رہا ہوں, تعاونیہ والوں کو میں نے کیا ہے, ان لوگوں نے بس تھوڑا سا رسپانس دیا, لیکن انہوں نے کہا بھائی بس فون بند کر دیا, مطلب بات نہیں زیادہ سنی. کہا ٹھیک ہے آپ کو کر دیتے ہیں ہم. کوئی رسپانس نہیں, کوئی جواب نہیں ملا, ٹھیک ہے نا. کافی لوگ ڈرتے ہیں یار ہمیں عربی نہیں آتی, انگلش نہیں آتی, ہم کیسے کریں گے, یہ کریں گے. انشورنس کا کوئی بھی مسئلہ ہو, CCHI والوں کو کال کریں, کمپلین درج کروائیں اور انتظار کریں, وہ لوگ خود آپ کو فون کریں گے. آپ کے پاس کمپلین نمبر آ جائے گا میسج میں, ٹھیک ہے, اور وہ جو نمبر آئے گا اس نمبر کو آپ یاد رکھیں, اور کمپلین نمبر جب بھی فون کریں آپ اردو میں بات کریں, ان سے مکمل تفصیلات ان کو بتائیں اور ان سے اس کی خبر لیتے رہیں, ٹھیک ہے. انشورنس کی کوئی بھی مسئلہ ہو انشورنس کا, CCHI والوں سے رابطہ کریں.